बिफोर कि हम ये जानें कि एंडोजेनिक फोर्सेस ने कैसे शेप किया different landscapes on the surface of Earth, we have to know or take a review of different theories. In this domain जो हमें बताती हैं कि जो present situation है world में oceans और continents की ये कैसे evolve हुए कैसे so we are going to review these theories क्या different theories है in this regard, right? We have different theories इसमें. If we see from the inception we have continental drift theory, then we have CCT, that is convectional current theory, seafloor spreading theory, and in the last, that is plate tectonics, that is the latest in this domain, right? Are you understanding me? So before dwelling into how these endogenic forces shaped different aspects of the surface of Earth, we will review certain theories in this regard. Take a review of how present oceans and continents have evolved. In this domain, we have different theories, like that is continental drift theory. We have convectional current theory. We have seafloor spreading theory. And latest, that is plate tectonics. So all these theories we are going to see one by one. Understand me? All these theories. Now, first, that is the continental drift theory. Continental drift theory was the first attempt in this regard. In this direction, it was the first attempt proposed by Alfred Wegener. Proposed by Alfred Wegener. What does continental drift theory say? Alfred Wegener in this theory said that जो भी हमारे पास present continental landmass है और oceanic landmass है, they were part of a big landmass, single landmass, and big single ocean. This big single continental mass then broke down in different geological periods. It broke down. हिस्से होते गए, and in present situation we have 7 different continents. लेकिन ये सारे continents एक ही थे. They were joined entity, and the whole landmass was surrounded by a bigger ocean. The bigger landmass he called it Pangaea, and the larger oceanic mass that was surrounding it, he called it Anthalassa. He called it. जो सियाल और सीमा की डिस्टिंक्शन है वो भी वीगनर ने ही दी थी.
वो भी वीगनर ने ही दी थी कि सियाल ही सेड टू कॉन्टिनेंटल लैंडमास, कॉन्टिनेंटल क्रेस्ट एंड ओशनिक क्रेस्ट को उसने कहा सीमा। लेटर दिस प्रोपोजिशन वाज डिस्कार्डेड। ठीक है, देयर वर सर्टेन एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो हम डिस्कस करेंगे। देन हर थ्योरी का एक क्रिटिसिज्म होता है, वो क्रिटिसिज्म यहाँ पे भी इस थ्योरी का भी हुआ, राइट। सो प्रपोर्शन में क्या कहता है कि ऑल suggested that all continents were part of a single grand continent. He called it Pangea. He called it Pangea. He called it Pangea. And this Pangea was surrounded by a grand ocean. He called it Panthalassa. Panthalassa. He called it what? Panthalassa. अंडरस्टैंड यहां तक? फिर क्या होता है कि पैंजिया टूटने लगता है। टूटने क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ द एंडोजेनिक फोर्सेस। बिकॉज ऑफ द एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, एक बड़ा लैंड मास था, ठीक, मान लो ये पैंजिया है। पैंजिया के आसपास देयर वाज दिस बिगर ओशनिक मास। व्हाट वाज इट? पैंथेलासा। अब पैंजिया जब टूटने लगा तो इट स्टार्टेड ब्रेकिंग। जब ब्रेक होना स्टार्ट कर दिया तो बीच बीच में ओशंस ने अपनी पोजीशन ली, तो फिर डिफरेंट ओशंस भी बन गए। जैसे आज की कंपैरिजन में हमारे पास पैसिफिक है, अटलांटिक है, ठीक है। बीच में जब स्पेसेस दी, जहां पे टूटा वहां पे पानी आ गया, वहां पे क्या आ गया? पानी आ गया। ये प्रेजेंट सिचुएशन पे हम बात करें। नाउ अगर आप पिछले 2 लेक्चर पहले मैंने एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड बताया था, जियोलॉजिकल टाइम से, उसमें मैंने बताया था देयर इज अ टाइम पीरियड जब पैंजिया ब्रेक हुआ था। वो किस पीरियड में ब्रेक हुआ था? यू अंडरस्टैंड? किस पीरियड में ब्रेक हुआ था वो, बताइए। पैंजिया ब्रेक हुआ था, इट वाज ट्राइएसिक पीरियड, दैट वाज 200 million years ago. 200 million years ago, in the Triassic period. In the Triassic period. Triassic, हाँ हाँ जी, Triassic period में, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका एवोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहले पैंजिया टूटता है। He says Pangea breaks into 2 continents, Laurasia and Gondwana land. पैंजिया ब्रेक होता है, breaks into Laurasia and Gondwana land. लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। फिर लोरेशिया और गोंडवाना लैंड भी आगे आगे टूटने लगते हैं। दे सिमिलरली दे स्प्लिट थ्रू आउट द हिस्ट्री, और प्रेजेंट सिचुएशन में जितने भी हमें कॉन्टिनेंट्स हैं वो इन्हीं बिगर 2 पार्ट से आए हैं, चाहे वो लोरेशिया हो चाहे वो गोंडवाना लैंड हो, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ये दिस वाज पैंजिया इन द फर्स्ट प्लेस। पैंजिया, तो पैंजिया जब टूटा इट वाज ट्राइएसिक पीरियड। ट्राइएसिक पीरियड, ट्राइएसिक पीरियड में एक मान लो ये लोरेशिया है, ये गोंडवाना लैंड है। लोरेशिया जो है दिस ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, याद रखो, ठीक है। लोरेशिया ड्रिफ्ट हुआ नॉर्थ की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ, और गोंडवाना लैंड ड्रिफ्टेड towards south. Gondwana land drifted towards south, right? It is happening 200 million years ago.
अब बीच में तो ओशन अपनी प्लेस ले लेगा, बिकॉज हियर इट वाज ओशन, पैंथेला से। हाँ, जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे ओशन अपनी पोजीशन लेगा, दैट मींस यहाँ पे। ठीक, सी पहले ट्रायसिक में, दैट इज 200 मिलियन ईयर्स अगो। फिर जुरासिक पीरियड, दैट इज 150 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद आता है क्रिटेशियस पीरियड, 65 मिलियन ईयर्स, जब हिमालयाज बनने स्टार्ट हो गए। एंड प्रेजेंट, दैट इज होलोसीन। ठीक, इसमें लोरेशिया, गोंडवाना लैंड, अंडरस्टैंड। इसके बाद और ये ब्रेक हो गए, ठीक। क्रिटेशियस में और ठीक, एंड फिर लास्ट ठीक है। हमारे पास आज ये साउथ अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका होगा, ये यूरोप, ये एशिया, ये वेस्ट एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये एंटार्क्टिका, एंड दिस इज अफ्रीका। ठीक, बीच बीच में ओशंस ने अपनी, ये मान लो ये है अटलांटिक, अटलांटिक यहां से आ जाएगा पैसिफिक, ये हमारा इंडियन ओशन। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? बनाओ इसको। हो गया। नाउ वीगनर ने बताया कि ये सब में दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल, जो कॉन्टिनेंट्स टूट रहे हैं, देयर आर टू फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल। एक तो उसने बताया पोल फ्लीइंग फोर्स, एंड सेकंड टाइडल फोर्स। Pole fleeing force and tidal force. What is this pole fleeing force? This is Earth. It is rotating on its surface, on its axis, like in this direction, west to east. अब इस रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है ड्यू टू
rotation of earth, due to rotation of earth, due to rotation of earth। बताया जब ये फोर्स लगता है फॉर अ सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज केपेबल ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग दीज कॉन्टिनेंट्स। सेकंड उसने बताया टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स इज द म्यूचुअल फोर्स। ये मून है, मून ऑर्बिट किसकी तरफ कर रहा है? अर्थ और मून की तरफ जो है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है ना। दिस म्यूचुअल ग्रेविटेशनल पुल, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन अर्थ एंड मून जो है, ये भी सफिशिएंटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब लगेगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक लगेगा, तो ये इतना पावरफुल बन जाता है कि इट कैन डिसइंटीग्रेट द कॉन्टिनेंट्स। तो उसके जहन में दो ही फोर्सेस आए, एक तो आया टाइडल फोर्स, सेकंड इज द पोल फ्लिप, हाँ, जो कि रोटेशन ऑफ द अर्थ की। लेटर ऑन दीज टू assumptions वर डिस्कार्डेड, और बताया गया कि ये दोनों फोर्सेस इतने पावरफुल फोर्सेस नहीं हैं कि ये काम करे, डिसइंटीग्रेशन करे। दरअसल फिर जब ऑर्थर होम्स, आगे हम इसमें करेंगे, ऑर्थर होम्स कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ने करेक्ट किया इस डिफिशिएंसी को जो इसमें थी, जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में थी। ठीक है, नाउ सीइंग द एविडेंसेस, कि जिन एविडेंसेस के सपोर्ट में ही केम अप टू दिस कंक्लूजन, कि व्हाट डिड ही सी, कि ऐसी क्या एविडेंसेस उसको मिली या साइंटिस्ट को मिली जिनसे उनको लगा कि ऑल दीज लैंड मासेस वेर पार्ट ऑफ ईच अदर। कुछ एविडेंसेस ऐसी मिली होंगी प्रेजेंट सिचुएशन में जिनसे साइंटिस्ट ने डिसिफर किया कि ऑल दीज लैंड मासेस वेर पार्ट ऑफ one land mass, they were connected in throughout the evolutionary history. So in this regard we are discussing the evidences in support, evidences in support of continental drift theory, evidences in support of continental drift theory। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सबसे पहली कि जिगसॉ फिट पैटर्न ऑफ कॉन्टिनेंट्स। एग्जाम्पल साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। ठीक, इसमें कुछ कार्टोग्राफर्स थे जैसे मलाड वगैरह। ठीक है, उनने क्या किया, उनने जब क्लोजली रिजेंबल किया, उन्होंने देखा साउथ अमेरिका की जो ये कोस्ट लाइन है ईस्टर्न साइड, और जो हमारा अफ्रीका है उसकी जो कोस्ट लाइन है साउथ अमेरिका, ये क्लोजली मैच हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? क्लोजली मैच हो रहे हैं, एज इफ दीज वेर टू, दे वेर पार्ट ऑफ ईच अदर, दे वेर पार्ट ऑफ ईच अदर। तो जब उन्होंने इनकी शोर लाइंस को मैच किया, दे परफेक्टली मैच्ड ईच अदर, दे परफेक्टली मैच्ड ईच अदर। तो इससे भी ये उनको समझ आया कि एक सपोर्ट ये भी मिल गया कि समवेयर डाउन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री दीज टू कॉन्टिनेंट्स वर पार्ट ऑफ ईच अदर, these continents were part of each other. So first assumption was jigsaw pattern, jigsaw pattern, jigsaw pattern. Second, same age rocks, same age rocks, second same age rocks। रॉक्स की जब एज हम निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियोमेट्रिक डेटिंग। क्या कहते हैं उसको? रेडियोमेट्रिक डेटिंग, एक टेक्निक, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, टू डिसिफर द एज ऑफ रॉक्स, टू डिसिफर द एज ऑफ रॉक्स, रॉक्स की एज को डिसिफर करना। सो व्हाट डिड दे डू? इन्होंने क्या किया, साउथ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है, सपोज ब्राजील, ब्राजील के कोस्ट पे जो भी इनको रॉक्स मिले, और वेस्टर्न शोर लाइन ऑफ अफ्रीका, यहां पे उन्होंने रॉक्स लिए वेस्टर्न शोर लाइन पे। तो जब दोनों रॉक्स की, वहां से भी रॉक्स लिए, यहां से भी रॉक्स लिए, जब दोनों रॉक्स की क्या की, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, तो इनको लगा, दे वर सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट द रॉक्स वेर ऑफ द सेम एज, द रॉक्स वेर ऑफ द सेम एज, द रॉक्स वेर ऑफ द सेम एज। सो दे वर सरप्राइज्ड to see, surprised to witness that rocks were of the same age।
third, that is the tillite deposit. Tillite deposit. What is this tillite? Tillite is a sedimentary rock. Sedimentary rock formed due to glacial deposition. Glacial deposition. Formed due to glacial deposition. अब अर्थ जब ग्लेशियल पीरियड में थी, when earth was glacial, when earth was in ice age, means ice age जब में थी, उसके बाद आई इंटरग्लेशियल एज. इंटरग्लेशियल एज जिस एज में अभी हम हैं, जब वार्मिंग स्टार्ट हो गई, इंटरग्लेशियल एज. इंटरग्लेशियल एज में क्या हुआ कि जो अर्थ का आइस था वो क्या हो गया, मेल्ट होना स्टार्ट हो गया. व्हाई? बिकॉज अर्थ स्टार्टेड वार्मिंग. अर्थ स्टार्टेड वार्मिंग. अब जब इन्होंने आज के डे एंड एज में इन्होंने टेलाइट फॉर्मेशन जो थी सेडिमेंट्री रॉक, ये डिफरेंट लैंड मासेस से भी, डिफरेंट कॉन्टिनेंटल मासेस से भी, सपोज इन्होंने टेलाइट फॉर्मेशंस को अफ्रीका से भी लिया, इन्होंने एंटार्क्टिका से भी लिया, ठीक है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से भी लिया, इन्होंने इंडिया से भी लिया. तो दे वेर सरप्राइज्ड कि सेम टेलाइट फॉर्मेशन इन्होंने डिफरेंट लैंड मासेस से लिया, जिससे ये प्रूवन फैक्ट भी हुआ कि दीज लैंड मासेस वेर पार्ट ऑफ सिंगल लैंड मास, दैट इज द गोंडवाना लैंड. ठीक, दैट इज द गोंडवाना लैंड. ठीक, तो टेलाइट फॉर्मेशन अक्रॉस डिफरेंट लैंड मासेस confirmed that these land masses were part of one single land mass, that is Gondwana. So इसमें आप लिख सकते हो कि tillite from Gondwana system are same across different land masses. Different land masses which were originally part of what? हाँ, इसके साथ the placer deposits. Placer deposits साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका. गाना में they found the gold veins in गाना. गाना में गोल्ड माइन की है, they found the gold in African गाना. लेकिन गोल्ड वेन्स का मिलना कहां पे? गोल्ड वेन्स यहां पे नहीं है, गोल्ड वेन्स मिलने लगी इसकी साउथ अमेरिका में. दैट वेयर गोल्ड वेन्स कहां पे मिलने लगी? साउथ अमेरिका के ईस्टर्न शोर पे, बट गोल्ड मिल रहा है गाना में. ठीक है, तो बीच में देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 4500 kilometer, and this confirmed that these two land masses were also part of each other. So you can write in this that gold deposits in Ghana are linked to gold bearing veins in Brazil. Are linked to gold bearing veins in Brazil. इसके साथ साथ फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन. साइंटिस्ट को, बायोलॉजिस्ट को एक रेप्टाइल के फॉसिल्स मिले. दैट रेप्टाइल इज कॉल्ड मीजोसॉरस. एक रेप्टाइल था जो ब्रैकिश वाटर में रहता था. इट वाज अ ब्रैकिश वाटर रेप्टाइल. ठीक, इस मीजोसॉरस रेप्टाइल के फॉसिल्स इनको दो लैंड मासेस में, एक तो ब्राजील से और दूसरे साउथ अफ्रीका से. दो ही जगह पे मीजोसॉरस के फॉसिल्स इनको ब्राजील में मिले और साउथ अफ्रीका. अब ब्राजील कहां पे है? यहां पे. साउथ अफ्रीका कहां पे है? यहां पे. दिस ऑल्सो कंफर्म कि लैंड मासेस वेर कनेक्टेड, पार्ट ऑफ ईच अदर. देन दे ब्रोक डाउन.
Again, it confirms the continental drift. Continental drift. So Mesosauric, right? The Mesosaurus fossils in Brazil and South Africa. Mesosaurus fossils in South Africa and Brazil confirms continental drift. ठीक है? And one more, that is the Carboniferous glaciation. कार्बोनिफेरस ग्लासिएशन, इससे क्या कंफर्म होता है कि ब्राजील, इंडिया, इसी तरह साउथ अफ्रीका, कार्बोनिफेरस ग्लासिएशन की ट्रेसेस यहां पे मिलने की वजह से ये तो पता चलता है कि these land masses were located near poles. लेकिन आज के डेट में ये कहां पे है? ये तीनों जो है विद इन ट्रॉपिक्स लाई करते हैं, विद इन ट्रॉपिक्स लाई करते हैं. Now the criticism. Why is CDT criticized? इसका criticism, सबसे बड़ा criticism इसका जो किया जाता है वो ये कि जो वीगनर ने फोर्सेस प्रपोज किए वो इनसफिशिएंट है. इनसफिशिएंट फोर्सेस, इतना बड़ा काम और इतना बड़ा फिनोमेना होने के लिए ये फोर्सेस काफी नहीं. दैट इज पोल फ्लिंग फोर्स and tidal force seem insufficient. Insufficient seem करता है. Second, that is unjustified drift direction. अनजस्टिफाइड ड्रिफ्ट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि वीगनर ने बताया कि पैंजिया तो टूटा लाइक इन दिस प्लेस. इफ यू सी पैंजिया टूटा, लेकिन लोरेशिया की ड्रिफ्ट नॉर्थवर्ड्स क्यों हो गई और गोंडवाना साउथ की तरफ ड्रिफ्ट क्यों हो गया ये उसने नहीं बताया. सो अनजस्टिफाइड ड्रिफ्ट डायरेक्शन, दैट इज वन मोर. So unjustified drift direction. Third is it is inaccurate model. Inaccurate in the sense, inaccurate model in the sense that कि हम उसने क्या बताया, उसने बताया सियाल जो है that is continental crust, ये फ्लोट कर रहा है सीमा पे, that is the ओशनिक क्रस्ट. ये आर्गुमेंट आउटडेटेड है. आज के केस में क्या कहा जाता है, लेटर विच वाज डिस्कवर्ड दैट इट इज द क्रस्ट. वो किस पे फ्लोट कर रहा है? एस्थेनोस्फीयर पे. ये आज का प्रोपोजिशन है. ठीक है. तो यहां तक तो एक ही क्रिटिसिज्म हमें पता चला कि जब सीडीटी आई, सीडीटी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने बहुत चीजें हमें बताई जो कि अननोन थी, लेकिन एक डेफिशिएंसी जो मेजर थी कि ये जो फोर्सेस हैं ये कौन से फोर्सेस हैं. जो उसने बताया सबसे बड़ा मसला क्या रहा, फोर्सेस का. ही डिड नॉट क्लियर हिमसेल्फ ऑन द फोर्सेस.
ठीक है, पोल फ्लिंग फोर्स और रोटेशनल। इसके बैकड्रॉप में 1930s में ये काम किया ऑथर होम्स ने। किसने किया? ऑथर होम्स। ऑथर होम्स ने अपनी थ्योरी लाई, दैट थ्योरी इज कॉल्ड द कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। एंड इस क्वेश्चन को वंस फॉर ऑल क्या किया? सेटल किया। वंस फॉर ऑल सेटल किया। व्हाट क्वेश्चन? द क्वेश्चन ऑफ कि हाँ, व्हाट आर द फोर्सेस इन्वॉल्वड, व्हाट आर द फोर्सेस इन्वॉल्वड इन द ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, इन द ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन वंस फॉर ऑल सेटल हो गया। तो इसी के आगे फिर इस थ्योरी ने पेव की वे फॉर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। नाउ convectional current theory. Write down convectional current theory. Proposed in 1930s by Arthur Holmes. By Arthur Holmes. Proposed in 1930s by Arthur Holmes. Worked on the deficiency of force parameter of Wegener's CDT, of Wegener's CDT, that is continental drift theory. ठीक है, ऑथर होम्स ने क्या कहा कि प्लेट्स की मूवमेंट को कौन ड्राइव करता है? ही सजेस्टेड दैट मूवमेंट ऑफ प्लेट्स is driven by convectional currents, convectional currents or mental convectional currents, mental। और ये convectional currents कहां पे उठती है? upper part of the mental। ठीक, ये हमने कल भी देखा था कि अगर ये हमारे पास क्रिस्टल प्लेट्स हैं और ये किन पे फॉल करते हैं? एस्थेनोस्फीयर पे या अपर मेंटल पे। अपर मेंटल तो सारा क्या है? मोबाइल है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, उन रीजंस में क्या क्या है? थर्मल डिफरेंसेस की वजह से, है ना, थर्मल डिफरेंसेस, थर्मल डिफरेंसेस, रेडियो एक्टिविटी, हाँ, रेडियो एक्टिविटी, व्हाट इज एल्स? प्राइमोडियल हीट, अंडरस्टैंड, प्राइमोडियल हीट, ऑल दीज फिनोमेना। तो यहां से क्या है कि कन्वेक्शनल करंट्स का इंसेप्शन होता है और ये कन्वेक्शनल करंट्स ऐसे चलती हैं, ठीक है, ठीक है ना। ये सर्कुलर फ्लो, इनका लूप में चलने का, इनका सर्कुलेशन, लूप लाइक सर्कुलेशन, ये क्या करती हैं? ये प्लेट्स को क्या करती हैं? मूव कराती है। ये प्लेट्स को क्या कराती है? मूव कराती। सो ही एक्चुअली सॉ दैट इट इज नॉट actually due to the pole fling force or the tidal force, it is due to these mental convectional currents, mental convectional currents। और वो क्यों उठती है? because of those reasons। और इन्हीं currents की वजह से जो upper mental में उठती है, this is responsible for the plate movement, this is responsible for the plate movement, this is responsible for the plate movement। अब एस्पेक्ट आप देख लीजिए, ये प्लेट है, ये प्लेट है। अगर करंट्स कहीं पे एंटी क्लॉकवाइज बना रही है, मान लो यहां से जा रही है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज, और इस डायरेक्शन में क्या है? क्लॉकवाइज, हाँ, ठीक। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे प्लेट्स का डाइवर्जन होगा। क्या होगा? यहां पे तो डाइवर्जेंस होगा,
डाइवर्जेंस का मतलब प्लेट्स दूर जाएंगे, और यहां पे अगर क्या होगा, ये प्लेट क्या जाएगा इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा, ठीक। ये हमारे पास क्या है, दीज आर क्रिस्टल प्लेट्स, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3। ये आप याद रखना, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस का, ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज है, और ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब ये सब कहां पे हो रहा है, दिस इज अपर मेंटल, हाँ, या एस्थेनोस्फीयर, हाँ, और अपर मेंटल, और अपर मेंटल। इसकी मैं एक लिखोगे कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, करंट थ्योरी paved the way, paved the way for Henry Hess's seafloor spreading theory, seafloor spreading theory. अंडरस्टैंड कर रहे हैं, Henry Hess's seafloor spreading theory. Now our next is, that is the seafloor spreading theory. चलिए, sea floor spreading theory, seafloor spreading theory. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कंबाइंड हमें आज के डे एंड एज में कंप्लीट वे देती है कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्ट और ओशन फ्लोर की बनने की रिगार्डिंग। लेकिन सी फ्लोर स्प्रेडिंग यहाँ पे स्पेसिफिकली काम करती है कि हाउ ओशनिक फ्लोर हैज इवॉल्व, ओशनिक फ्लोर कैसे क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। उसमें जो हेनरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ऑफ हेनरी हेस प्रोवाइड्स अ वेरी इंसाइट इनटू हाउ द ओशनिक फ्लोर evolves, proposed by Henry Hess, provides an insight to how the oceanic floor evolves. ओशनिक फ्लोर evolves, ओशनिक फ्लोर कैसे इवॉल्व होता है, ठीक है। पहले तो ओशनिक फ्लोर कैसे होता है, ओशन के अंदर हम जाते हैं तो क्या मिलता है हमें। तो पहले तो हमें समझना है कि ओशन कैसे होता है, क्या होता है ओशनिक फ्लोर। ओशनिक फ्लोर ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक,
तो अगर हम देखिए, अगर हम ओशन का फ्लोर देख लें तो सबसे पहले हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिखता है, फिर कॉन्टिनेंटल राइज दिखता है, फिर जब हम नीचे जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल स्लोप यहाँ पे, फिर राइज, उसके बाद एबिसल प्लेन्स, एबिसल प्लेन्स के आगे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें मिड ओशनिक रिजेस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मिड ओशनिक रिजेस। मिड ओशनिक रिजेस के यहां से भी एबिसल प्लेन्स है, फिर ठीक है, फिर वापस से कॉन्टिनेंटल राइज, स्लोप और कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये ओशन की जब हम डेप्थ, अगर हम यहां तक जाते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज तक, दीज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। याद अब याद रखिए कि ये जो कॉन्टिनेंटल राइज के यहां पे होते हैं जिनको हम कहते हैं डीप सी ट्रेंचेस, डीप सी ट्रेंचेस कॉन्टिनेंटल राइज के आसपास, एंड दीज आर दी जोन्स ऑफ सबडक्शन, जोन्स ऑफ सबडक्शन, जोन्स ऑफ सबडक्शन, दीज आर दी जोन्स ऑफ सबडक्शन। अब एबिसल प्लेन्स क्या है? दीज आर प्लेन्स सिचुएटेड इन द ओशंस, ओशन के फ्लोर में, एंड दीज आर व्हाट आर दीज? मिड ओशनिक रिजेस। मिड ओशनिक रिजेस आर एक्चुअली द mountain chains, submerged mountain chains in the ocean, submerged mountain chains in the oceans. These mid oceanic ridges are the fault mountains. They are situated along the divergent boundaries, जहां पे ये डाइवर्जेंस हो रहा है, ठीक है। अब हेनरी हेस का क्या मतलब था? उसने बोला कि ओशन फ्लोर जो है इवॉल्व होता है, बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता था। वो कैसे? उसने बोला कि मिड ओशनिक रिज जो है ये प्लेस ऑफ डाइवर्जेंस है, प्लेस ऑफ डाइवर्जेंस है। यहां पे कुछ भी होगा, सपोज वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो नया जो है लावा गिरता है। क्या करता है? लावा गिरता है, ठीक है। कोई भी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो लावा गिरता है, ठीक। वो लावा जो है ऑन द आइदर साइड्स ऑफ मिड ओशनिक रिजेस, आगे की तरफ ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द मिड ओशनिक रिजेस गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पे नया क्रस्ट बनता है, न्यू क्रस्ट। न्यू क्रस्ट जब बनता है तो जो पुराना क्रस्ट है उसको क्या करता है? साइड अवे करता है। क्या करता है? साइड अवे। तो पुराना जो क्रस्ट है वो ड्रिफ्ट होता है यहाँ की तरफ और यहाँ की तरफ। इवेंचुअली ड्रिफ्ट, जब वहां से नया बनता गया, बनता गया, बनता गया, इवेंचुअली जो पुराना क्रस्ट है वो आगे जड़ता है और ड्रिफ्ट होता है, और लास्ट में वो सबडक्ट होता है इन्हीं ओशनिक ट्रेंचेस के थ्रू। जब उसका सबडक्शन होता है, मींस कि यही ओशनिक क्रस्ट जो है इसकी क्या हो जाती है? सबडक्शन। ओशनिक क्रस्ट की क्या हो जाती है? सबडक्शन। सबडक्शन का मतलब जब होता है क्रस्ट कहां की तरफ चला जाता है? नीचे की तरफ, मेंटल की तरफ, और यही वापस किस में गिर जाता है? मेंटल में, और मेंटल में वापस से इसको क्या बन जाता है? मैग्मा वापस गिरता है, फिर वो इवेंचुअली मेंटल में जाता है, इवेंचुअली फिर वापस वॉल्केनो। मींस कि इट इज अ सर्कुलर प्रोसेस कि यहाँ पे अगर मिड ओशनिक रिज है, एमओआर है, यहाँ पे कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, यहाँ पे नया क्रस्ट आया, पुराने क्रस्ट को क्या किया? ड्रिफ्ट किया। पुराना क्रस्ट आगे आगे जाता है और फिर सबडक्ट होता है। जब पुराने क्रस्ट की सबडक्शन होती है फिर वो इवेंचुअली कहां पे जाएगा? वापस से मेंटल में चला जाएगा, ठीक है। वापस से इसी सर्कुलर प्रोसेस में वो आ जाएगा, ठीक है। वापस से इसी सर्कुलर प्रोसेस में वो आ जाएगा, ठीक। ये किसने कहा? हेनरी हेस ने, ठीक है। तो इसलिए इसने क्या बताया कि ये जो ओशन का क्रस्ट है इसी तरह क्या होता है? इवॉल्व होता है, सर्कुलर वे में इवॉल्व होता है। तो इट इज अ सर्कुलर एवोल्यूशन, सर्कुलर एवोल्यूशन। नया क्रस्ट बनता है, पुराना क्रस्ट ड्रिफ्ट होता है, ठीक है। सो यू कैन राइट इन दिस, राइट।
लिखिए, मैग्मा राइजिंग एट मिड ओशनिक रिजेस, magma rising at mid oceanic ridges forms new oceanic floor and pushes old crust apart at subduction zones. At subduction zones oceanic crust sinks beneath plates and is destroyed, and is beneath the plates and is destroyed, and is destroyed. ठीक, अंडरस्टैंड फिर से, पहले ओशन का फ्लोर समझो। ओशनिक फ्लोर समझो, ठीक है। जब हम कॉन्टिनेंट से ओशन की तरफ जाते हैं तो पहले ये सी लेवल होता है, ठीक। कॉन्टिनेंट, ये मान लो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इस पे पानी होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो यहाँ पे ये मान लो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहां से फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप आ जाता है, क्या आ जाता है, स्लोप आ जाता है। फिर यहां से थोड़ा, इसको हम कहते हैं राइज, क्या कहते हैं, राइज, कॉन्टिनेंटल राइज। आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां से हमें अबिसल प्लेन्स मिलते हैं, क्या कहते हैं, अबिसल प्लेन्स, प्लेन्स इन दी ओशन। अबिसल प्लेन्स के आगे जाते हैं तो हमें यहाँ पे एक माउंटेन चेन मिलती है, दोज आर कॉल्ड मिड ओशनिक रिजेस, और यही प्रोसेस यहां से भी है, ठीक है, यही प्रोसेस यहां से भी है। अब these mid oceanic ridges are sites of what? These are sites of active, हाँ, volcanism और earthquake activity, ठीक। मिड ओशनिक रिज पे, मान लो ये मिड ओशनिक रिज पे नया लावा गिरता है ओशनिक फ्लोर पे, ठीक है, तो ये नया क्रस्ट बनाएगा, न्यू क्रस्ट बनाएगा। जो पुराना क्रस्ट है उसको ये ड्रिफ्ट करेगा, ये जो पुराना क्रस्ट है वो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट अवे होगा, ओल्ड क्रस्ट जो है वो ड्रिफ्ट हो जाएगा, ओल्ड क्रस्ट की ड्रिफ्ट हो जाएगी। ये ड्रिफ्ट होता जाता है और यहां पे आ जाते हैं हमारे, जिनको हम कहते हैं ओशनिक ट्रेंचेस। ओशनिक ट्रेंचेस आर जोन्स ऑफ सबडक्शन, ओशनिक ट्रेंचेस आर व्हाट, जोन्स ऑफ सबडक्शन। ये होते हैं बिल्कुल deepest points है, some of the deepest points in the oceans are situated along these oceanic trenches. ये situated होते हैं along continental rise, और ये जो पुराना क्रस्ट है इवेंचुअली ये सबडक्ट होता है इन्हीं ओशनिक क्रस्ट के थ्रू और पहुंच जाता है वापस किसमें, मेंटल में। किसमें पहुंच जाता है, मेंटल में, यहां से, ठीक है, वापस कहां पे पहुंच जाता है, मेंटल में। मेंटल में जब ये वापस पहुंच गया तो वापस क्या बनेगा, मैग्मा बनेगा, और फिर वापस कहां से निकलेगा, एमओआर से। तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस बनता है, क्या बनता है, सर्कुलर प्रोसेस। इस सर्कुलर प्रोसेस से, इस सर्कुलर फ्लो से ओशन का जो फ्लोर है, ओशनिक फ्लोर चेंज होता है, चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। नाउ व्हाट आर द एविडेंसेस, क्या एविडेंसेस हेनरी हेस को मिली जिससे उसको ये समझ में आया कि सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। व्हाट आर द डिफरेंट एविडेंसेस जिससे हेनरी हेस को ये समझ में आया व्हाट एक्चुअली सी का जो फ्लोर है वो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। सो एविडेंसेस इन सपोर्ट, evidences in support. Number first, that is age of oceanic crust.
age of oceanic crust. When a radiometric dating was done, it revealed that rocks closer to mid-oceanic ridges are younger than rocks at continental margins. Rocks at continental margins. ठीक है, ये पहला। जब रेडियोमेट्रिक डेटिंग की गई तो यहां पे मिड ओशनिक रिजेस के साथ जो रॉक्स मिलने लगे और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे रॉक्स, इनकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग की, एजिंग, ठीक है, तो ये यंगेस्ट निकले, ये क्या निकले, ओल्डेस्ट निकले। सो इट कंफर्म द फैक्ट दैट ओशनिक फ्लोर हैज बीन चेंजिंग, इट इज इवॉल्विंग, इट इज सेपरेटिंग। पहली तो ये। दूसरा सेडिमेंट थिकनेस। दूसरा क्या था? सेडिमेंट थिकनेस, कि sediment is thicker at margins and thinner around mid oceanic ridges, या आप ऐसे मान के चलो कि मिड ओशनिक रिजेस के अराउंड कौन ओशनिक क्रस्ट थिनर है और मार्जिन्स के अराउंड ओशनिक क्रस्ट क्या है? थिकर है। ठीक है। सेकेंड एविडेंस इज द हीट फ्लो पैरामीटर्स। हीट फ्लो पैरामीटर्स, ठीक, हीट फ्लो पैरामीटर। हीट फ्लो पैरामीटर्स के लिए आप याद रखोगे कि मिड ओशनिक रिजेस के अराउंड जब देखा गया तो यहां पे देखा गया टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर इज हाई, और यहां पे देखा गया तो टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर इज लो। इसका क्या मतलब कि यहाँ पे मैग्मा क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। और यहाँ पे कूल क्यों है? बिकॉज यहाँ पे क्या नहीं है, एक तो दूर है, डिस्टेंट है, ओल्ड है। तो यहाँ पे पहला इसमें हीट फ्लो पैरामीटर, हीट अराउंड मिड ओशनिक रिजेस confirm a rising magma and forming of new crust, forming of new crust, forming of new crust, forming of new crust। दूसरा effect of heat decreases as you move away from मिड ओशनिक रिजेस। इफेक्ट ऑफ हीट जो है वो डिक्रीज होती है, दैट मीन जितना आप मिड ओशनिक रिजेस के पास जाओगे उतना हीट, हाँ, जितना दूर जाओगे उतना इफेक्ट ऑफ हीट कम हो जाएगा। ठीक है। थर्ड जो मेजर है इसमें, दैट इज द मैग्नेटिक पोलैरिटी, मैग्नेटिक पोलैरिटी इन रॉक्स। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले हमें डिस्कस करना है जियोमैग्नेटिज्म कैसे होता है। और जियो ये असल में रिलेटेड है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है, अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है, अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस, एक तो अर्थ का रोटेशनल एक्सिस, दूसरा अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है, जियोमैग्नेटिक एक्सिस, जियोमैग्नेटिक एक्सिस। वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, या तो वो इंक्लिनेशन दिखाती है या तो वो डिक्लिनेशन दिखाती है, एवरी 10,000 ईयर्स, एवरी 10,000। और वो हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है रॉक्स में। वो हिस्ट्री किस में रिकॉर्ड होती है? जब रॉक मैग्मा आता है ना, मैग्मा निकलता है, कूल ऑफ होता है, तो वो
कूलिंग जो होती है रॉक्स में, वो अलाइन करते हैं अपने आप को, जो अर्थ का मैग्नेटिक इंक्लिनेशन होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक एक्सिस होगा। तो जब हम डिफरेंट रॉक्स को स्टडी करते हैं तो मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग करते हैं, क्या करते हैं, एक टेक्निक आती है दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग। मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग, मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग, और ये मैग्नेटिक पोलैरिटी कैसे चेंज हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो हम देखते हैं थ्रू रॉक्स, ये भी एक डायरेक्ट एविडेंस है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थ का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे चेंज होता है, कैसे चेंज होता है। दिस वी विल सी इन टुमारोज लेक्चर। बट आई थिंक बिफोर गोइंग ऑल थ्रू दिस, की जो हमने पढ़ा, सीडीटी पढ़ा या सीसीटी पढ़ा और थोड़ा इसमें सी फ्लो स्प्रेडिंग में पढ़ा, कल इसका जो है मैग्नेटिक, क्योंकि वो ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक कि आप जियोमैग्नेटिज्म पूरे से समझोगे कि जियोमैग्नेटिज्म क्या है, कैसे चेंज होता है। थोड़ा सा उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, जब तक कि आप वो समझोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। सो अनलेस यू डिसाइड, और दूसरी बात ये है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि इवन इफ यू डिसाइड, कि मतलब अभी आप सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हो, so everybody is everybody, unless you put yourself fully into this, fully का मतलब क्या है कि this exam demands maximum out of you, each one of you, whosoever is preparing, this exam demands maximum out of you, and for that you have to make sure that you give that maximum. जहां पे भी आप स्लैकीनेस लाओगे अपनी स्टडीज में, वो इफेक्ट करेगा आपकी आगे वाली जर्नी को। जर्नी बहुत टफ है, इनक्रेडिबल है, फुल ऑफ सरप्राइजेस है, शॉक्स है। It is going to be a very different and a roller coaster journey for all, and especially when I say that जो भी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में आता है, he or she should mind this in the first place, that this is going to be different. This is not just an exam, आप उसके लिए पढ़ रहे हो, फिर आप क्लियर करोगे, एंड देन द होल जर्नी, जितना एग्जाम को क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है, उतना इस जर्नी को सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट द स्टूडेंट हु विल सस्टेन द जर्नी, who is going to sustain the journey, will eventually pass this exam. और पास और एक तो सक्सेस रेट बहुत कम है, वो तो पता ही है, लेकिन सक्सेस और सस्टेनेंस, जो सस्टेन करेगा जर्नी को, दोनों इनक्रेडिबल है। दोनों जो है स्टूडेंट को कुछ ना कुछ बना के ही जाते हैं, बट दैट हैज वन कंडीशन, प्रोवाइड्स द स्टूडेंट इज गोइंग टू या हैज गिवन हिज और हर मैक्सिमम, उसने अपने लेवल्स को सैचुरेट किया है ड्यूरिंग दिस, and inshallah we are hopeful that results will inshallah turn in on your side inshallah. So consistency is the key. There is a saying that do, बल्कि मैं अलग से लिखूंगा, you have to do the absolute boring. You have to do the absolute boring to qualify this. Absolute boring, वही रूटीन को बार बार क्लासेस में बैठना, नोट्स बनाना, न्यू कंटेंट ऐड करना, वैल्यू एडिशन करना, यही करना पड़ेगा, बहुत बोरिंग है। You want to go out, people want to go out, they want to enjoy. You will compare yourself, बाहर लोग एंजॉय कर रहे हैं, why are we staying in the classroom, why are we writing, making notes, कितना बोरिंग है ये जॉब, बट यू हैव टू डू द एब्सोल्यूट बोरिंग टू अचीव दिस, और कोई रास्ता नहीं, देयर इज नो अदर वे। अंडरस्टैंड? गुड बाय।